موبائل کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں 19 سے 33% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ کمپنیز نے پی ٹی اے کی منظوری سے سالانہ بنیادوں پر اضافہ کیا ہے۔ ماہانہ کال اور ڈیٹا پیکیجز میں 500 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ پی ٹی اے کے مطابق 15 روزہ کال اور ڈیٹا پیکیجز میں 300 روپے تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہفتہ وار ہائبرڈ پیکیجز میں 130 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ 3 روزہ موبائل پیکیجز میں 21 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ 2 روزہ موبائل پیکیجز میں 20 روپے تک اضافہ کیا گیا اور 1 روزہ ہائبرڈ موبائل پیکیجز میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ہائبرڈ اور ڈیٹا اونلی پیکیجز کے ٹیرف ویب سائٹ پر بھی جاری ہیں۔ نئی ٹیرف شیٹس میں موبائل کمپنیز کے موجودہ پیکیجز کی قیمتیں بھی شامل ہیں۔ سماحی قیمتوں، مدت اور سہولیات کی مکمل تفصیلات بھی جاری ہیں۔ صارفین مختلف کمپنیز کے پیکیجز کا آسانی سے تقابلی جائزہ لے سکیں گے۔ پی ٹی اے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موبائل کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں 19 سے 33% تک اضافہ کر دیا گیا ہے اور کمپنیز نے پی ٹی اے کی منظوری سے سالانہ بنیادوں پر اضافہ کیا ہے۔ ماہانہ کال اور ڈیٹا پیکیجز میں 500 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ پی ٹی اے کے مطابق 15 روزہ کال اور ڈیٹا پیکیجز میں 300 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ ہفتہ وار ہائبرڈ پیکیجز میں 130 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ 3 روزہ موبائل پیکیجز میں 21 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 2 روزہ موبائل پیکیجز میں 20 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق 1 روزہ ہائبرڈ موبائل پیکیجز میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائبرڈ اور ڈیٹا اونلی پیکیجز کے ٹیرف ویب سائٹ پر جاری ہیں۔ نئی ٹیرف شیٹس میں موبائل کمپنیز کے موجودہ پیکیجز کی قیمتیں بھی شامل ہیں، جبکہ پی ٹی اے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سماحی قیمتوں اور مدت اور سہولیات کی مکمل تفصیلات بھی جاری ہیں۔ صارفین مختلف کمپنیز کے پیکیجز کا آسانی سے تقابلی جائزہ لے سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موبائل کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں 19 سے 33% تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کمپنیز نے پی ٹی اے کی منظوری سے سالانہ بنیادوں پر اضافہ کیا ہے۔ ماہانہ کال اور ڈیٹا پیکیجز میں 500 روپے تک کا اضافہ کیا گیا، جبکہ 15 روزہ کال اور ڈیٹا پیکیجز میں 300 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق ہفتہ وار ہائبرڈ پیکیجز میں 130 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور 3 روزہ موبائل پیکیجز میں 21 روپے تک کا اضافہ کیا گیا اور 2 روزہ موبائل پیکیجز میں 20 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 1 روزہ ہائبرڈ موبائل پیکیجز میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 15 ہائبرڈ اور ڈیٹا اونلی پیکیجز کی ٹیرف ویب سائٹ پر بھی جاری ہیں۔ نئی ٹیرف شیٹس میں موبائل کمپنیز کے موجودہ پیکیجز کی قیمتیں بھی شامل ہیں۔ سماحی قیمتوں، مدت اور سہولیات کی مکمل تفصیلات بھی جاری ہیں۔ پی ٹی اے کے مطابق صارفین مختلف کمپنیز کے پیکیجز کا آسانی سے تقابلی جائزہ لے سکیں گے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں موبائل کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں 19 سے 33% تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں مہنگائی کھلے عام، گرا فروش بے لگام، سرکاری نرخ نامے ٹھوس ہو گئے۔ چکن گوشت 500، بیف 1500 اور مٹن 3500 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ٹماٹر پھر 550 روپے کلو کی حد کو چھو گیا۔ شملہ مرچ 400، مٹر 500 روپے کلو فروخت، جبکہ چکن، بیف اور مٹن کی قیمتیں بھی بے لگام ہو گئی ہیں۔ مہنگائی کے مسلسل طوفان نے کم آمدنی والے طبقے کی پہنچ سے ہر قسم کا گوشت دور کر دیا ہے۔ چکن، بیف اور مٹن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 500 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ بیف 1400 سے 1500 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکا ہے۔ مٹن کی قیمت 3200 سے 3500 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹ ہوا میں اڑا دی گئی۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پیاز 90 روپے کی بجائے 150، ٹماٹر 295 کی بجائے 550 روپے فی کلو بکنے لگا۔ دیسی لہسن 140 کی بجائے 310 روپے فی کلو، ادرک 330 کے بجائے 450 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ کیلا 140 کے بجائے 200 روپے فی درجن، انور رٹول آم 325 کے بجائے 410 روپے فی کلو، چونسا 330 کی بجائے 350 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ضروری اشیاء خورونوش بالخصوص گوشت، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ کم آمدنی والے طبقے کو بھی مناسب قیمت پر پروٹین کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں حکومت اور پیٹرول پمپ مالکان میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو چکا ہے۔ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وائس چیئرمین ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ بتایا گیا
आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान बरकरार है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान बरकरार है। वाइस चेयरमैन एसोसिएशन नुमान भट्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर था, जो कि वो भी नाकाम हो चुका है और मुज़ाकरात में कोई अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई। और वाइस चेयरमैन एसोसिएशन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान बरकरार है। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और आज दूसरा दौर था जो कि नाकाम हो चुका मुज़ाकरात का, और मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान भी बरकरार है। वाइस चेयरमैन एसोसिएशन नुमान भट्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान भी बरकरार है। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके, जो कि आज दूसरा दौर था मुज़ाकरात का और नाकाम हो चुके हैं ये मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वाइस चेयरमैन एसोसिएशन की जानिब से बताया गया कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान भी बरकरार है। तो आपको बता रहे हैं, हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में आज मुज़ाकरात का दौर था, दूसरा दौर था जो कि नाकाम हो चुका है और मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 323 रुपये 6 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे इजाफे के बाद 369 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर इजाफे के साथ अशियाए जरूरिया, ट्रांसपोर्ट किरायों और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो रही है। जो टमाटर ना परसों 200 रुपए किलो था, अब 400 रुपए किलो। गरीब आदमी करे क्या? ये जो लैंडलॉर्ड है, इनको ना पेट्रोल का पैसा देना पड़ता, ना बिजली का पैसा देना पड़ता, इनके बाप की सारी मलकियत है, तो गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत ने अगर डलवाना हो ना अपने पैसों से जेब से, तो हुकूमत को पता हो तो क्या महंगाई है। ये तो आवाम को ही पता चलेगा, जिन्होंने अपनी पॉकेट में से या अपनी सैलरी में से, जिनकी सैलरी 30-35 हज़ार, उन्होंने अपनी सैलरी में से तेल डलवाना है। क्या करेंगे, पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकते। पेट्रोल तो डलवाना, काम पे जाना है, तो मजबूरी है, क्या करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। आटा जो है वो हमारा महंगा हुआ है। महंगाई ने वाकई कमर तोड़ी हुई है। गरीब आदमी का तो गुजारा बहुत मुश्किल है, वो सुसाइड कर रहा है। जितना भी महंगा होगा आवाम ने तो फिर भी डलवाना ही है, क्या कहेंगे। गरीब आदमी की कर सकता, सबर ही कर सकता, और तो कोई गल नहीं। 5 रुपये तकरीबन बताता है, 7 रुपये पिछले दिनों बताता है। माड़ा बंदा सी सेल मैना की करिए, मैनेज नहीं कर पा रहे। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा न सिर्फ उनकी कुव्वत खरीद को मुतासिर कर रहा है, बल्कि महंगाई के नए तूफान को भी जन्म दे रहा है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। अस्पतालों के लिए अरबों के फंड्स वाली न्यू अस्पताल को 1 अरब 80 करोड़, जबकि गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। सर्विसेज को 1 अरब 30 करोड़ रुपए मुंतकिल। सैयद मिठा अस्पताल को 22 करोड़ 90 लाख रुपए मिले। DHQ अस्पतालों में MRI मशीनों की फराहमी। महकमा सेहत ने 8 अरब 31 करोड़ की डिमांड कर दी। PND बोर्ड ने महकमा सेहत से PC1 तलब कर लिया है। महकमा खजाना ने लाहौर के अस्पतालों के लिए बजट जारी कर दिया। सैयद मिठा अस्पताल को 22 करोड़ 90 लाख रुपए, मेयो अस्पताल को 1 अरब 80 करोड़ रुपए और सर गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस तरह सर्विस अस्पताल को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट मज़कूरा अस्पतालों के अकाउंट में ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के DHQ अस्पतालों में जदीद तिब्बी तशखीसी सहूलियात की फराहमी के लिए MRI मशीनों की खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसके लिए महकमा सेहत ने हुकूमत
हुकूमत से 8 अरब 31 करोड़ रुपए के फंड्स तलब कर लिए हैं। मंसूबे के तहत पंजाब के मुख्तलिफ DHQ अस्पतालों में जदीद MRI मशीनें नस्ब की जाएंगी ताकि मरीजों को बर वक्त मयारी और जदीद तशखीसी सहूलियात उनके अपने अजला में मैसर आ सकें। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के तरजीही मंसूबे लहर प्रोजेक्ट को माली मसाइल का सामना है। टीपा को नासिरबाग पार्किंग प्लाजा के मुल्हिका पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फराहम न किए जा सके। टीपा ने हुकूमत पंजाब से 78 करोड़ से जायद के फंड्स तलब कर लिए। मंसूबे में लोअर माल से GC यूनिवर्सिटी नीला गुंबद तक ट्रैफिक के लिए रूट को बंद करना शामिल है। रूट को जदीद ब्यूटिफिकेशन के बाद पेडेस्ट्रियन बनाना भी मंसूबे का हिस्सा है। अब यहाँ पर आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 4 एडहॉक मेडिकल अफसरान मुलाजमत से फारिग कर दिए हैं। मियो अस्पताल से एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर राशिद नदीम को फारिग कर दिया गया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताएगा मेडिकल अफसरान को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नाअहली और मिसकंडक्ट की बुनियाद पर 4 एडहॉक मेडिकल अफसरान जो है उनको मुलाजमत से फारिग किया गया है। मियो अस्पताल से एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर राशिद नदीम को मुलाजमत से फारिग किया गया, जबकि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात के मेडिकल अफसरान डॉक्टर वकास अली, डॉक्टर हुसनैन अफजल, डॉक्टर राहील अहमद जो है उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। और ये चारों एडहॉक जो मेडिकल अफसरान थे इनकी जो है वो मुलाजमत खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल्कुल, नाअहली और मिसकंडक्ट पर फारिग किया गया है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स चोरों के खिलाफ महकमा एक्साइज मुतहरिक। यूनिट्स को टैक्स नेट में लाने के लिए 12 साल बाद सर्वे का आगाज। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर जोन 13 से आगाज किया गया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 42 अरब के हुसूल के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों की शामत आ गई। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने की ठान ली। यूनिट्स को टैक्स नेट में लाने के लिए 12 साल बाद सर्वे का आगाज कर दिया गया है। एक्साइज हकाम का कहना है कि फिलरा के डाटा को मद्देनजर रखकर GIS बेस्ड सर्वे का आगाज किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर जोन 13 से आगाज किया गया। जोन 13 में 80,000 के करीब यूनिट्स टैक्स अदा कर रहे हैं। मजीद 20 के करीब यूनिट्स के टैक्स नेट में शामिल होने की तवक्का है। डिजिटल सर्वे से तमाम इन असिस्ट और अंडर असिस्ट प्रॉपर्टी यूनिट्स टैक्स नेट में शामिल होंगे। एक्साइज हकाम ने मजीद बताया कि अभी लाहौर में 9 लाख से जायद यूनिट्स प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। पंजाब भर में 25 लाख से जायद यूनिट्स प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी के बाद पंजाब भर में सर्वे किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि रवा साल 42 अरब के टारगेट के हसूल के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक लाइसेंस में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंस के इजरा में शिकायत आने पर मुतल्लिका ज़िले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना है कि पहले सिर्फ लाइसेंसिंग सेंटर्स के इंचार्ज और अमले के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थीं। लाइसेंसिंग सेंटर से बदउनवानी की शिकायत के जिम्मेदार अमले के साथ सुपरवाइजरी ऑफिसर भी हैं। लाइसेंसिंग इंचार्ज और अमले के खिलाफ मुतल्लिका RPO जबकि ज़िले ऑफिसर के खिलाफ ट्रैफिक हेडक्वार्टर इंक्वायरी करेगा। लाइसेंसिंग सेंटर्स को हेड ऑफिस कंट्रोल रूम से कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। लाइसेंसिंग सेंटर पर सिर्फ मेरिट पर अजरा के लिए सख्त इकदामात उठाए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम ज़िले अफसरान को अहकामात के हवाले से आगाह कर दिया गया। हमारे यहाँ लाइसेंसिंग के सारे प्रोसेस को काबिल एतमाद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमने इस पर इन्वेस्टमेंट की है। हमारे कैमराज हैं, हमारी गूगल शीट्स हैं, हमारी रिमोट मॉनिटरिंग है, हमारे डैशबोर्ड्स हैं, हमारे वन ऐप के जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे हैं, जिसकी वजह से अब कहीं पे भी कोई बेकायदगी होती है तो वो हमारे यहाँ रिपोर्ट हो जाती है और उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिपार्टमेंटल एक्शन अब सिर्फ मुतल्लिका अहलकार तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जाएगा, क्योंकि सुपरवाइजरी ऑफिसर के वहाँ पे होने का वाहिद मकसद ये है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है शफाफ है और कानून के मुताबिक हो रहा है, ना कि ये वहाँ पे कोई बेकायदगी या बदउनवानी हो और फिर यहाँ पे हेडक्वार्टर से डिटेक्ट हो और फिर मुतल्लिका बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर आपको बताएं, मांगा मंडी ट्रैफिक हादसे में 21 अफराद के जख्मी होने का वाक़या। अफसोसनाक हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फैक्ट्री की कोस्टर्स एक दूसरे से आमने सामने टकराई।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी से गाड़ियों पर कंट्रोल ना होने के बायस हादसा पेश आया। हादसे में 21 जख्मी अफराद को इंडस अस्पताल रायगढ़ मुंतकिल किया गया है। दोनों ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। आपको बता रहे हैं मांगा मंडी में ये वाक़या पेश आया, जहां पर ट्रैफिक हादसे में 21 अफराद के जख्मी होने का ये वाक़या पेश आया। अफसोसनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। फैक्ट्री की कोस्टर्स एक दूसरे से आमने सामने टकराई और तेज रफ्तारी से गाड़ियों पर कंट्रोल ना होने के बायस हादसा पेश आया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसे में 21 जख्मी अफराद को इंडस अस्पताल रायगढ़ मुंतकिल किया गया और दोनों ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मांगा मंडी में फैक्ट्री की कोस्टर्स एक दूसरे से आमने सामने टकराई और तेज रफ्तारी से गाड़ियों पर कंट्रोल ना होने के बायस ये हादसा पेश आया और हादसे में 21 जख्मी अफराद को इंडस अस्पताल रायगढ़ मुंतकिल किया गया। दोनों ड्राइवर्स के लाइसेंस को मुअत्तल किया गया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रो तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। एसडीओ गुलशन रावी हमरा लाडी को सदरन सर्कल डिफेंस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। फैजान कादर को डिप्टी मैनेजर सेफ्टी तैनात कर दिया गया। अहमद शहजाद चुगताई को मैनेजर पीएमयू तैनात करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इब्रारुर रहमान को सदरन सर्कल डिफेंस रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई, जबकि नुमान भट्टी को डिप्टी मैनेजर प्लानिंग तैनात करने के अहकाम भी जारी किए हैं। सराजुद्दीन एजुकेशन एक्सियन MNT शेखपुरा तैनात किया गया। एक्सियन गुलाम मुस्तफ़ा को टेक्निकल डायरेक्टोरेट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई। SDO अली रजा को ननकाना साहब रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई। हमादुल्ला को नादरन सर्कल रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तकर्रो तबादलों के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मुतअद्दिद एक्सियंस और SDOs के तकर्रो तबादले करने के अहकाम जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहमद शहजाद चुगताई को मैनेजर PMU तैनात किया गया है, जबकि सिराजुद्दीन अरेजो को एक्सियन MNT शेखपुरा और नुमान भट्टी को डिप्टी मैनेजर प्लानिंग तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब फैजान कादिर को डिप्टी मैनेजर सेफ्टी लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। SDOs की अगर बात की जाए तो SDO अबरारुर रहमान को सदरन सर्कल रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। इसी तरह SDO गुलशन रावी हमरा लाडी जो हैं इनको भी सदरन सर्कल डिफेंस रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। एक्सियन गुलाम मुस्तफ़ा को टेक्निकल डायरेक्टोरेट, जबकि SDO अली रजा को ननकाना साहब सर्कल और हमादुल्ला को नॉर्दर्न सर्कल रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों में 38 करोड़ से तरक्याती स्कीमों का आगाज। 2 खतरनाक इमारत वाले स्कूल्स में 30 नए कमरे बनाए जाएंगे। लाहौर के 47 स्कूल भी शामिल हैं। दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट के तहत पहला नर्सिंग स्कूल बनेगा। दूसरे सालाना इम्तिहानात में दूसरे शिफ्ट में लेने की तजवीज़ दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने दोपहर के औकात में इम्तिहान लेने के हवाले से तैयारी शुरू कर दी। लाहौर के सरकारी स्कूलों में 384 मिलियन रुपए की लागत से 146 तरक्याती स्कीमों का आगाज हो गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट मंसूबे के तहत 384 मिलियन रुपए के फंड्स खर्च होंगे। 2 खतरनाक इमारत वाले स्कूल्स में 30 नए कमरे बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलंदरपुरा में 22 नए कमरे बनेंगे। CDGL बॉयज स्कूल नीमपुर में 8 नए कमरे तामीर होंगे। लाहौर के 47 स्कूलों में कुल 169 कमरे बनाए जाएंगे। 43 स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स बनाए जाएंगे। दूसरा सालाना इम्तिहान दूसरी शिफ्ट में लेने की तजवीज दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने दोपहर के औकात में इम्तिहान लेने के हवाले से तैयारी शुरू कर दी। मॉर्निंग शिफ्ट के बजाय सेकंड शिफ्ट में इम्तिहानात लेने की मंसूबा बंदी की जाएगी। इम्तिहानी मराकज के बेहतर इंतजाम के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। सेकंड टाइम के बजाय सेकंड शिफ्ट में इम्तिहानात लेने की तजवीज ज़ेरे गौर है। इम्तिहानात दोपहर में मुंतकिल होने से इंतजामी अमूर मजीद आसान होने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर तामीरात मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान सुबह भर के 38 अजला में मौजूद महकमा तामीरात मवासात के फील्ड फॉर्मेशन का जायजा लिया गया, जबकि शाहराहों पर तैनात एक्सियंस और SDO से ऑनलाइन ब्रीफिंग ली गई। और इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने हिदायत की कि बारिश के मौसम के दौरान तमाम फील्ड अफसरान मौजूद थे। चीन के सूबे होनान के शहर लाउडी और गुजरात के माबैन सिस्टर सिटी और बाहमी मुआशी ताउन का मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और डिप्टी मेयर
लाहौरी सिटी मिस्टर योंगबाई ने मुआहदे पर दस्तखत किए। डेविस रोड पर मुनक्का तकरीब में चाइनीज कौंसल जनरल सिनयान, लाहौरी सिटी के आला सतह के हुकूमती वफ्द ने शिरकत की। मुआहदे के बाद ज़राअत, माईशत, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, ज़राअत, तालीम, सियाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने चीन की कंपनीज की जानिब से पंजाब में सरमायाकारी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि वज़ीर आला के बयान के मुताबिक पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया गया है। चीन का आला सतह का सरकारी वफ्द गुजरात और लाहौरी सिटी के माबैन मुआशी ताउन के मुआहदे के लिए पंजाब आया है। उनके मशकूर हैं चाइनीज कौंसल जनरल सिनयान का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के माबैन मुआशी ताउन, दोस्ती और एतमाद का मजबूत रिश्ता मौजूद है। अब यहाँ पर आपको बताएं, पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान सामने आया है। उम्मीद है मुनाफे का मामला 2 हफ्तों में हल हो जाएगा। पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से ये बताया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल हल करवाएंगी। अली परवेज मलिक की जानिब से कहा गया, खित्ते की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। सब ने मिलकर तेल की सप्लाई और कीमतें काबू पाने के लिए काम किया है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। उम्मीद है मुनाफे का मामला 2 हफ्तों में हल हो जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल हल करवाएंगे। अली परवेज मलिक की जानिब से कहा गया, खित्ते की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि सब ने मिलकर तेल की सप्लाई और कीमतें काबू पाने के लिए काम किया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। उम्मीद है मुनाफे का मामला 2 हफ्तों में हल हो जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल हल करवाएंगे। खित्ते की सूरत हाल के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से ये बताया गया है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का नाम तब्दील। हुकूमत पंजाब ने इदारे का नया नाम पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज़ अथॉरिटी रख दिया है। नाम की तब्दीली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ कमीशन पहले की तरह जारी रखने का ऐलान किया है। तरमीम शुदा कानून के मुताबिक अब तमाम सरकारी मरासलात, नोटिफिकेशंस, रिकॉर्ड, फाइलों और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जगह पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज़ अथॉरिटी का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। हायर एजुकेशन विमेंस बेसबॉल चैंपियनशिप में हंगामा आरआई पर एक्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। एचईसी फाइनल मैच और इख्तितामी तकरीब में बद इंतजामी पर कार्रवाई की गई है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के विमेंस बेसबॉल टीमें 1 साल तक मुकाबलों से बाहर हैं। टीम मैनेजर, कोचेस और दीगर ऑफिशियल्स पर भी 1 साल की पाबंदी आयद की गई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी एचईसी के तमाम स्पोर्ट्स इवेंट से मुअत्तल हैं। तशद्दुद और गैर खेलों के रवैये पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एचईसी की जानिब से बताया गया, दोनों टीमों पर पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, हायर एजुकेशन विमेंस बेसबॉल चैंपियनशिप में हंगामा आरआई पर एक्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पर 1 साल की पाबंदी आयद की गई है। एचईसी फाइनल मैच और इख्तितामी तकरीब में बद इंतजामी पर कार्रवाई की गई। दोनों यूनिवर्सिटीज़ की विमेंस बेसबॉल टीमें 1 साल तक मुकाबलों से बाहर हैं। टीम मैनेजर्स, कोचेस और दीगर ऑफिशियल्स पर भी 1 साल की पाबंदी आयद की गई है। मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन ने खेलों में डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए विमेंस बेसबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में जो हंगामा केस हुआ था उसके ऊपर बड़ा फैसला किया है। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी की जो विमेन बेसबॉल टीम्स हैं, दोनों पर 1-1 साल की पाबंदी आयद कर दी है। एचईसी ने फाइनल मैच के हिसाब पर जो बद इंतजामी हुई थी और दोनों टीमों के खिलाड़ियों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके ऊपर ये एक्शन लिया है। इसमें टीम मैनेजर, कोचेज और जो ऑफिशियल्स थे उन पर भी 1-1 साल की पाबंदी लगाई है और इन तमाम खिलाड़ियों को एचईसी के तमाम इवेंट्स जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनसे 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया है। एचईसी का ये कहना है कि खेलें जो हैं वो सब्र और तहम्मुल का दर्ज देती है, लेकिन सब्र और तहम्मुल के खिलाफ काम करने पर किसी किस्म की जो है वो टॉलरेंस उसका मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ये पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। जी बिल्कुल, पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के दरमियान बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, हुनरमंदी और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। FPCCI के रीजनल चेयरमैन और नायब सदर ज़की एजाज़ और चेयरपर्सन
چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارا احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر ذکی اعجاز نے کہا کہ یہ معاہدہ بچوں کے فلاح و بہبود اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان مؤثر شراکت داری کا عملی مظہر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایم او یو کے تحت مستحق بچوں اور نوجوانوں کو فنی اور تکنیکی تربیت، ووکیشنل ایجوکیشن، انٹرنشپ، اپرینٹسشپ اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف پی سی سی اے اپنے ممبر چیمبرز، ٹریڈ ایسوسی ایشنز اور صنعتوں کے تعاون سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور اپرینٹسشپ کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ پیوان کو نیشنل نالج اور ریسورس سینٹر بنانے کے لیے قومی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پیوان آگاہی اور ورلڈ ہنگر حلفے کے زیر اہتمام ماہرین اور اداروں نے مجوزہ روڈ میپ کے لیے سفارشات پیش کیں۔ ورکشاپ کا مقصد پیوان کے پاکستان کے فراہمی اور نکاسیاب اور حفظان صحت کے شعبے کے لیے قابل اعتماد نیشنل نالج اور ریسورس سینٹر کے طور پر مضبوط بنانا تھا۔ ورکشاپ میں یونیسیف، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، تعلیمی اداروں، بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں، فراہمی اور نکاسیاب کے اداروں اور پیوان کے ممبر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کے دوران واش سیکٹر میں نالج، ریسرچ اور کیپیسٹی کے موجودہ خلا کی نشاندہی کی گئی۔ شرکاء نے پیوان کے انتظامی ڈھانچے، ممبرشپ، کوارڈینیشن، پارٹنرشپ اور ادارہ جاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ پورے شعبے میں نالج مینجمنٹ، جدت، ریسرچ اور انفارمیشن شیئرنگ کو بہتر بنانے کے لیے جامعہ روڈ میپ کی تیاری پر بھی مشاورت کی گئی۔ ڈیجیٹل انفارمیشن سٹوریج، ریسرچ، ٹریننگ مٹیریل کی تیاری اور اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ، ماہرین کے درمیان رابطہ کاری اور شواہد پر مبنی فیصلہ سازی ورکشاپ کے اہم موضوعات بھی شامل تھے۔ سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے شعبہ نیورولوجی کے زیر اہتمام ورلڈ برین ڈے کی مناسبت سے آگاہی واک منعقد کی گئی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زہرا خانم، سربراہ شعبہ نیورولوجی پروفیسر ڈاکٹر محمد عدنان اسلم، فیکلٹی ممبران، ڈاکٹرز اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ دماغی امراض کی بروقت تشخیص اور علاج سے پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ صحت مند طرز زندگی دماغی صحت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں City 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب بات۔